So good afternoon, everyone. We were discussing personal tax planning in the last class. वैसे मैंने अपनी तरफ से आपका टॉपिक फिनिश कर दिया था. I received some queries regarding our first part of the discussion last to last class का. So I'm going to take a recap for those topics for those of you. I hope जिन्होंने वो queries पूछी थी they are present in the class today, and for the rest of you it will be a revision as well. So I'm going to start once again कि tax planning में हमने पढ़ा क्या क्या था. Taxes are basically what? It is something which takes a chunk of your total earnings. To counter this, tax planning is a legitimate way of reducing your tax liability in any given financial year. Tax planning is the analysis of one's financial situation from tax efficiency point of view so as to plan finances in the most optimized manner. Taxes are something जो pay करने ही करने हैं, right? But there are certain ways, there are different way arounds to reduce the amount of taxes which might have to be paid. लेकिन उन सबका एक legitimate way यानी कि एक legal मेथड हो. देयर शुड बी नथिंग इलीगल अबाउट इट. हमने टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में इसीलिए पढ़ा था दैट टैक्स इवेजन इज नॉट समथिंग विच इज अलाउड, विच इज नॉट लीगल. टैक्स अवॉइडेंस प्रोवाइड्स ways of planning your taxes in a manner that आपकी जो टैक्स लाइबिलिटीज हैं वो भी कम हो जाएंगी एंड आपकी जो फाइनेंस आपका टैक्स पेमेंट भी जाएगा एंड यू विल बी इन अ फाइनेंशियली sound situation from this point of view. Okay, tax planning allows a taxpayer to make the best use of various tax exemptions, deductions, and benefits to minimize tax liability over a financial year. जो हमने जितनी सेक्शन 80 की डिडक्शंस पढ़ी, सेक्शन 10 के एग्जेम्पशंस पढ़े और जितने भी टैक्स सेवर बेनिफिट्स फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स यू गेट, वी डिड ऑल ऑफ दैट. सो ऑल ऑफ देम व्हाट दे ऑल डू इज दे प्रोवाइड, दे आर beneficial to the taxpayer because it is providing them multiple ways to reduce their tax liability, to make investments, to inculcate a saving habit. So इसीलिए tax planning is providing different benefits to the taxpayers. And the last point is that tax planning is a legal way of reducing the income tax liability. However, caution has to be maintained to ensure that taxpayer isn't knowingly indulging in tax evasion or tax avoidance. टैक्स प्लानिंग आप कर रहे हो अपने टैक्सेस कम करने के लिए, लेकिन वो आप एक लीगल रूट के थ्रू कर रहे हो कि इनकम टैक्स एक्ट में, लॉ में लिखा है कि इफ आई मेक एन इन्वेस्टमेंट अंडर दीज इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 80C तो 1,50,000 की डिडक्शन मिल सकती है मैक्सिमम. सो दैट इज अ लीगल राउट टू रिड्यूस द टैक्स पेयर्स लायबिलिटी. उसके अलावा if somebody is trying to hide their income or understating the income or not disclosing it at all, that is something that is tax evasion, which is not legal, which is not allowed. ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग होता है बेसिकली यू आर प्लानिंग योर टैक्सेस इन सच अ वे कि आपकी सारी अर्निंग्स भी डिस्क्लोज हो रही हैं, आपकी सारी investments are in place, but you're also able to save some of your money in those tax payments. ठीक है. The objective क्या है टैक्स प्लानिंग का? टैक्स प्लानिंग is a focal part of financial planning. It ensures savings on taxes while simultaneously conforming to the legal obligations and requirements of the Income Tax Act. जैसे हमने पढ़ा था कि जितने भी tax planning tools हैं, tax saving tools हैं, all of them have certain terms and conditions of those investments, of those savings. उन्हें ही fulfill करने के बाद a person is allowed deductions and exemptions. The primary concept of tax planning is to save money and mitigate tax burden. However, it is not the sole objective. दूसरा objective जो हमने क्या पढ़ी थी, दूसरे फायदे क्या होता है? It provides money supply in the economy. It inculcates saving habits in a person. It is providing investments for the future of a person. ठीक है? Advantages of tax planning क्या थे? To minimize litigation. Litigation कभी भी कोई tax disputes आ रही हैं between a person and the authorities, वो local tax authorities हैं, state government या foreign taxes से related कोई भी disputes हो रही हैं, to minimize those problems. There is often friction between tax collectors and taxpayers, as the former attempts to extract the maximum amount possible, while the latter desires to keep the tax liability to a minimum. Former कौन है यहाँ पे? Tax collector, यानी कि जो government authorities है, उनके लिए तो revenue आ रहा ज़्यादा से ज़्यादा government के लिए through taxes, so they want more. Taxpayer जो एक individual person है या बिजनेसमैन है या कंपनी है, दे वांट टू मिनिमाइज दैट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, क्योंकि वो तो उनके लिए फाइनेंशियल एक्सपेंस ही है एक्स्ट्रा एक तरह से.
So minimizing litigation saves the taxpayer from legal liabilities. The second point is to reduce tax liability. Tax liability to the person की कम हुई नहीं है. They are saving money जो tax payment में use होता है. Instead, they can use that money now to incur personal expenses, to make investments for their future. They can reduce payable tax by arranging investments within various benefits under the Income Tax Act, which we have already done in the last class. The Act offers many tax planning investment schemes that can provide that can significantly reduce your tax liability. जो हमने Income Tax Act में अलग अलग डिडक्शंस क्लेम करने के लिए यू कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कितने लिमिट की टैक्स बेनिफिट मिल जाती है फिर, दैट इज दैट. Then the next point is that it ensures economic stability. Taxpayers' money is devoted to the betterment of the country. Effective tax planning and management provides a healthy inflow of white money that results in the sound progress of the economy, which provides benefits to both the citizens and the economy. Government के पास जो taxes जो government आपसे collect करे, income tax होगा, corporate tax होगा, GST है, customs है, all kinds of taxes, it is basically revenue for the government. What the government does with that money? The government uses that money for the development activities in your area, in your country, for defense, for infrastructure, for various, for health benefits, medical facilities, education facilities, and so on. So what is that happening? That money is being used for the betterment of the country. So, and there is a healthy inflow of white money. White money कैसे है? क्योंकि सारे money का डिस्क्लोजर है, इन सबके सोर्सेज. जब ITR फाइल करता है एक पर्सन या एक बिजनेसमैन, तो वो दे साइट कि कहाँ से दिस इज इनकम फ्रॉम माई बिजनेस, दिस इज इनकम फ्रॉम माई फिक्स्ड डिपॉजिट, दिस इज इनकम फ्रॉम माई रेंट प्रॉपर्टी, दिस इज इनकम फ्रॉम माई सैलरी. तो वो सब डिस्क्लोज हो जाता है. उनके बैंक अकाउंट्स उनके पैन कार्ड से लिंक्ड होते हैं, पैन कार्ड नंबर डिस्क्लोज हो जाता है. सो इन अ वे दिस इज वाइट मनी और नथिंग इज हिडन हियर. So all of this ensures overall economic stability, overall benefits for the individual taxpayer as well as for the economy. Okay, and the last point is it leverages productivity. One of the core tax planning objectives is it channelizes funds from the taxable sources to different income generating plans. फंड की प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, आपके जो पैसे हैं, आप योर मनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस थ्रू द टैक्स प्लानिंग सोर्सेज इंस्ट्रूमेंट्स. You are using your funds to make investments and at the same time it is helping you in saving taxes. और जो आप investments करोगे उनसे भी different income आएंगी. तो ठीक है, ये हो रहा है channelizing funds from taxable sources to different income generating plans. This ensures optimal utilization of funds for productive causes, right? So these are the benefits of tax planning. अब टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग होती है. एक होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग. हियर अ पर्सन इज व्हाट दे आर डूइंग इज इट इज थॉट ऑफ एंड एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर. यानी कि 31 मार्च को हर साल फिस्कल ईयर खत्म हो जाता है. 1 अप्रैल 31 मार्च इज द फाइनेंशियल ईयर. सो इफ अ पर्सन इज नाउ स्टार्टिंग टू थिंक, अच्छा ईयर खत्म हो गया, मेरी इतना इनकम बना है, अब मुझे देखना है कि व्हाट आई कैन डू to save my taxes. So investors resort to this planning in an attempt to search for ways to limit tax liability legally after the financial year comes to an end. It does not partake long-term commitments. However, it can still promote substantial tax savings. कह रहे हैं इसमें आप ऐसे एवेन्यूज देखते हो फिर अपने मनी इन्वेस्टमेंट्स के जहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स सेवर टूल्स हैं. So that way you are still able to save some taxes from your liability, tax liability. The second one is the long-term tax planning. Long-term tax planning में तो a taxpayer starts from the beginning of the financial year and they start planning throughout. अब अच्छा मैं every month इतना investment करेंगे तो I will be able to invest this much in these 80C instruments and I will be able to save 1,50,000 का tax. तो अब क्या है, वो सब उन्होंने investments पहले से करके रखी. So what is happening here is, unlike short-term tax planning, you might not be offered immediate tax benefits, but it can still prove useful in the long run. क्योंकि यहाँ पे आप long term investments कर रहे हो सकता है जैसे आपका हमने पढ़ा था एक एजुकेशन लोन की EMIs हैं या फिर होम लोन की EMIs हैं, उन सब का ओवर द ईयर बेनिफिट्स मिलेगा, राइट? उन सब के इंटरेस्ट पेमेंट पे कहीं पे डिडक्शन मिल रही है, कहीं पे एग्जेम्पशन मिल रही है प्रिंसिपल के थ्रू. So these things are happening. So all of these are what? These are long-term commitments जो आपके इनके ये
होम लोन है, एजुकेशन लोन है, these are not your short term commitments. So these are a few examples of using those in as part of your long term tax planning. या फिर हमने पढ़ा था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और यूटीआई एंड यूलिप्स में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने से भी डिडक्शन मिलती है. ठीक है, वो एक पर्सन हो सकता है, दे डू दैट इन्वेस्टमेंट लेटर एट द एंड. सो दैट इज द वेरिएशन. The next is permissive tax planning. This method involves planning under various provisions of the Indian taxation laws. Tax planning in India offers several provisions such as deductions, exemptions, contributions and incentives. तो यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 80C में different tax saving instruments हैं to claim different types of deductions. So all of this is what? It is permissible, it is allowed under the Income Tax Act of 1961. तो इसीलिए इसे कह रहे हैं हम permissive tax planning. ये क्या है purposive tax planning? Purposive tax planning involves using tax saver instruments with a specific purpose in mind. It ensures that you obtain optimal benefits from investments. It includes accurately selecting the appropriate investments, creating an apt agenda to replace the assets if required, and diversification of the business and income assets based on your residential status. यहाँ पे क्या है, आप purposive tax planning में you are specifically using only those financial instruments जहाँ पे investment करने से tax benefit मिले, tax saving होगी. जैसे you are only making fixed deposits for 5 years which is a tax saver deposit क्योंकि उसका deduction मिलता है, या फिर you are only investing in those mutual funds which offer tax benefits. So that is purposive tax planning. यहाँ पे एक long term through thought out process है कि you are selecting only the, इसीलिए बोल रहे हैं, selecting the appropriate investments, creating an agenda to replace the assets if required, and diversification of the बिजनेस एंड इनकम एसेट्स. रेजिडेंशियल स्टेटस एक रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट की बात होती है, ये आपने डायरेक्ट टैक्सेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा. जो फिर फाइलिंग ऑफ आईटीआर होती है डिफरेंटली होती है उनके, एंड इनकम फ्रॉम दो सोर्सेज, different sources is also treated in a certain way based on the residential status. तो इसीलिए everybody irrespective of that can do purposive tax planning or permissive tax planning or short term planning or long term planning. Okay. Then steps in tax planning क्या है? First of all, a person should know their gross annual income. Gross annual income उनकी total income है from all the sources. If it is a salaried individual, then it is income from their salary. कुछ उन्होंने मान लो बैंक में deposits हैं, तो income from those deposits. Then they have certain property जहाँ पे उनसे rent आता है, so income from that house property is there. या फिर they have bought and sold some investments, so capital gains हैं, right? या फिर if a person is a businessman, then his profits and gains from that business. Okay, and then so on, different annual income, different sources से total annual income जितनी बन के आएगी. Step 1 is for an individual to determine that. ठीक है? Then the second step is reduce your taxable income. अब taxable income पता चल गया ये total income है. अब इसमें से taxable income कौन कौन सी है? मैंने आपको बताया ना, exemptions के केस में क्या होता है कि part of your some part of the income is totally exempt, कि इस पे तो tax लगता ही नहीं है, income tax law में बोला हुआ है. ठीक है, तो a person should identify those components कि अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था कि चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस जो होता है सैलरी में, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, या एग्रीकल्चरल इनकम जो जो सोर्सेज में से स्पेसिफाइड है वो एग्जेम्प्ट है. तो अ पर्सन विल देन आइडेंटिफाई कि मेरी टोटल इनकम में से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो टैक्सेबल हैं ही नहीं. तो नाउ देयर टैक्सेबल इनकम इज रिड्यूस्ड, टोटल में से जो एग्जेम्प्ट इनकम थी वो माइनस कर दी, तो बचा हुआ है जो टैक्सेबल इनकम है जिस पर टैक्स लगेगा. द नेक्स्ट स्टेप, यूज द टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स. अब जितनी टोटल इनकम पता चल गई जिस पे आप टैक्स पे करना है, नाउ दे विल आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट्स जिनके अंडर इनकम टैक्स, जिनमें इन्वेस्टमेंट करने से इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शंस देते हैं. यू विल आइडेंटिफाई दैट देन टेक हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स टू सेव द टैक्सेस. कि जो हमने जैसे मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा था कि यू आर गेटिंग टैक्स डिडक्शन for health insurance or disability of your family members, of your dependents, or you can take financial advisory to manage your taxes from your elders and so on. Then the next step is keep tax proofs handy for verification. एक बार एक person ने अपनी ITR फाइल कर दी,
उसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो वेरीफाई करते हैं आपकी आईटीआर में आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद देन आपका जो टैक्स पेमेंट हो गया है एंड योर इनकम्स हैव बीन एवरीथिंग हैज बीन डन प्रॉपर्ली, तो व्हाट देन यू शुड कीप द प्रूफ्स ऑफ एवरीथिंग। आपका बैंक से जो इंटरेस्ट आया था उसका स्टेटमेंट, सैलरी स्टेटमेंट, या और भी जो सोर्सेज हैं, कैपिटल गेन से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपकी पुरानी आइडियाज जो हैं, a person should keep all of those things preserved for verification by the income tax department अगर कोई उन्होंने query raise कर दिया, dispute raise हो जाए तो। And then finally file your taxes before the deadline. Income tax return file करने की deadline होती है हर साल। Before that a person should timely make the payment of their taxes and file their income tax return before that deadline. ठीक है, अब ये हमने लास्ट पढ़ा था कि इनकम टैक्स के इंडिया में क्या रेट्स हैं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स, मैंने आपको बताया था, और इंडिविजुअल्स के केसेस में हमने 3 कैटेगरीज की थी, अ पर्सन बिलो 60 इयर्स ऑफ एज, अ पर्सन हु इज अबव 60 इयर्स ऑफ एज हु इज अ सीनियर सिटीजन, एंड अ सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 प्लस होती है। ठीक है, तो इनके केस में हमने क्या पढ़े हैं, इनकम टैक्स रेट्स क्या हैं, दैट इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि पीपल हु आर बिलो द एज ऑफ 60, उनके केस में द इनकम टैक्स इज 0 फॉर इनकम अप टू ₹2,50,000। अगर किसी पर्सन की इनकम 2.5 लाख है तो उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक पर्सन की टोटल, सो दिस इज टोटल एनुअल टैक्सेबल इनकम, ये जो फिगर्स हैं, ठीक है। 2,50,000 टू 5 लाख इज 5%। अब फिर नाउ 2.5 लाख के ऊपर जो इनकम है अप टू ₹5 लाख, उस डिफरेंस पे लगेगा 5% टैक्स। देन 5 to 10 लाख पे लगेगा 20%, एंड फाइनली 10 लाख से ऊपर जितना भी पार्ट ऑफ सैलरी टोटल इनकम है उस पर लगेगा 30% टैक्स। ओके, इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन यू कैन सी द टैक्सेशन, सॉरी, द टैक्सेशन रेट्स आर सेम 0, 5, 20, 30, लेकिन इनकम रेंज देखो ये डिफरेंट है। यहाँ पे इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 तक एग्जेम्प्ट है, बट सीनियर सिटीजन के केस में गवर्नमेंट ने 2,50,000 नहीं 3 लाख तक रिलैक्सेशन दी है, दैट अ सीनियर सिटीजन हुज एनुअल इनकम इज 3 लाख डू नॉट नीड टू पे एनी टैक्सेस। बाकी स्लैब फिर सेम है कि 3 to 5 है, अगर 3 से ऊपर और 5 से कम है तो उतने अमाउंट पर लग जाएगा 5%, 5 से ऊपर वाले अमाउंट पे लग जाएगा 20%, एंड 10 से ऊपर वाले अमाउंट पे लग जाएगा 30%। ओके, एंड फाइनली इन द केस ऑफ अ सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि पर्सन हु इज ऑफ एज 80 years एंड अबव, उनके केस में द एग्जेम्प्ट इनकम इज इवन मोर। द एग्जेम्प्ट इनकम इन केस ऑफ अ सुपर सीनियर सिटीजन इज 5 lakh, up to ₹5 lakh no tax will be charged from that person। 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है तो सेम देखो 20% लगेगा, एंड 10 लाख से ऊपर है एक सुपर सीनियर सिटीजन के केस में भी दे ऑल्सो हैव टू पे अ टैक्स ऑफ 30% ऑन दैट इनकम। तो ये है इंडिया में पर्सनल टैक्सेशन इनकम टैक्स के रेट्स इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, Now, how to get started with the tax planning. Tax planning एक पर्सन कैसे करनी चाहिए, जो हमने वो steps बताए कि first of all a person should know their total annual income. This is the starting point of the process and requires accurately assessing the annual and monthly income. सबसे पहले ये पता होना चाहिए। Second step जैसे मैंने आपको बताया, अब taxable aspects कौन कौन से हैं। That for example हमने पढ़ा HRA में is not taxable, या फिर children's education allowance is not taxable. However, profits made from the investments adds to the taxable income. Therefore, understanding one's taxable income is a prerequisite to be able to plan the taxes. पता होना चाहिए आपकी टोटल इनकम में से कौन सी चीज़ों पे कोई टैक्स नहीं लगता है इनकम टैक्स रूल्स के अंडर, एंड कौन से कंपोनेंट्स पे टैक्स लगता है। Then the third step is to make use of deductions to reduce the total taxable income. सेक्शन 80 में जितनी सारी रिडक्शंस हैं उन्हें यूज करे एक पर्सन। This can be done by structuring the salary and proper planning of the investments. For example, interest from fixed deposit is taxed at the same rate as income tax. ठीक है, जितना मतलब आपकी टोटल सैलरी में आपने फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अर्न किया वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाता है, और फिर जिस भी इनकम ब्रैकेट में आप आते हो उस पर उस अकॉर्डिंग टैक्स लग जाता है। While a debt fund held over years is taxed at 20%. तो debt fund का क्या है, बोला गया है कि already 20% ही है। So if you fall in the 30% tax bracket against the taxable income of 10 lakh and above, debt funds are a more tax friendly option.
क्या कह रहे हैं इस देखो एग्जाम्पल में, एक पर्सन है, उनकी सैलरी, उनकी टोटल इनकम है 10 लाख से ऊपर, ठीक है। यानी कि अब क्या होगा, उनकी सैलरी वो आगे थर्ड ब्रैकेट में 30% ब्रैकेट में आ जाएंगे वो। अब नाउ व्हाट विल हैपन इज this person, all of his income from all the sources will be charged at 30%, 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उनकी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ये, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, द वाइज थिंग फॉर दिस पर्सन विल बी कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट जिसका इंटरेस्ट पे 30% टैक्स लग जाएगा, ही और शी विल इन्वेस्ट इन अ डेट फंड जिसके ऊपर बोला गया है कि पहले से स्पेसिफाइड है दैट इट इज अ टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड जिस पर 20% टैक्स लगता है। तो इवन इफ दैट पर्सन इज द कैटेगरी ऑफ 30%, उन्होंने अपना 10% टैक्स बचा लिया, 30 की जगह उन्हें 20% टैक्स देना पड़ा। तो इस तरह से पर्सन शुड आइडेंटिफाई टैक्स सेविंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। Finally, you invest in the tax saving instruments. There are a wide range of reductions in Section 80C through Section 80U of the Income Tax Act of 1961. Other options such as reductions and tax credits are listed in the Income Tax Act. ये हमने सारे कल डिस्कस भी कर लिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड्स की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, 5 year डिपॉजिट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, health insurance premium, home loan payments. All of these are means provided in the Income Tax Act to save your total tax payable. One simple example we discussed was, for example, an individual's income is 6.5 lakhs per annum, ठीक है। अब देखो 6.5 lakhs per annum के हिसाब से अगर देखें तो देखो थोड़ा सा इनकी इनकम पे लग जाएगा 5% चार्ज, थोड़ी सी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, थोड़ी सी पे 5% लगेगा, थोड़ी सी पे 20% लगेगा, टोटल अगर एनुअल इनकम 6.5 lakhs है। अब देखो टैक्स कैसे बचाएंगे, व्हाट दे विल डू इज दे विल इन्वेस्ट 1.5 lakhs इन द नोटिफाइड स्कीम्स। 1.5 lakhs हमने पढ़ा था सेक्शन 80C, 80CC एंड 80CCD में टोटल रिडक्शन 1.5 lakhs की मिल जाती है थ्रू योर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब बच वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अगर, देन दे कैन ब्रिंग डाउन देयर टैक्सेबल इनकम टू 5 lakhs। तो देखो एक स्लैब ऊपर चले गए, अब 5 lakhs पे आ गए। नाउ कंसिक्वेंटली रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी टू नील, as a person having taxable income up to rupees 5 lakh, available is a rebate of 12,500 under section 87A। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 87A जिसके अंदर स्पेसिफाइड है कि जिस पर्सन की एनुअल इनकम अप टू ₹5 लाख है उन्हें एक टैक्स रिबेट मिलता है, यानी कि उनका उतना टैक्स माइनस कर देते हैं। कितना कर देते हैं, मैक्सिमम 12,500। तो अब देखो 5 लाख पे उनका जितना भी 2,50,000 उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाता, बचे हुए 2,50,000 पे उन्हें 5% टैक्स पे करना पड़ता, वो भी उनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि रिबेट मिल गई 12,500। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई, जीरो। द पर्सन विल हैव टू पे जीरो टैक्सेस इवन इफ देयर एनुअल इनकम इन द स्टार्टिंग वाज 6.5 lakhs per annum, ठीक है। These savings can then be put to productive use। जो अब टैक्स नहीं देना पड़ा उस पैसे को a person will use it for themselves with a simple assessment of your income and some basic tax rules। Planning your taxes can ensure overall financial security, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर फर्स्ट क्लास। इसमें से किसी को कोई डाउट है, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन डू आई कीप गेटिंग, थ्योरी प्रोजेक्ट पोर्शन है या प्रैक्टिकल पोर्शन है? दिस इज थ्योरी, okay. I know this portion was complete, Janvi. I received some queries, I don't remember the names now, from different areas of this particular class, so I told them that I will discuss it for them in the next class. How many units are there in the syllabus? There are 5 units. We've completed the third one. Today I'm going to start with the fourth one now, which is insurance planning. तो अगर आप इसमें से कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, हाँ। सो यार नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 4 इज अबाउट इंश्योरेंस प्लानिंग। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने टैक्स प्लानिंग पढ़ लिया, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट यूनिट नाउ, व्हिच इज इंश्योरेंस प्लानिंग। इंश्योरेंस प्लानिंग में क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड protection planning. Insurance, what is insurance? It is something which is for the protection of a person or their family in case of any losses they incur to their life, to their property, to any catastrophic event, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होता है,
different insurance schemes होती हैं, different protection plans होते हैं. Why that all that is important? For whom all that is important? We will see now. Protection planning क्या होता है? Protection plans are specifically designed to provide full protection and financial stability to an individual and their family in case of any unforeseen events. किसी person ने financial losses अगर incur किए तो or there is a loss of life of a person, so in that case that person and their family should be in a financially stable position. They should be protected against those unforeseen events. इसीलिए different चीज़ों के different protection plans होते हैं. Protecting oneself and their assets is important in the event of an untimely death, disability or a catastrophic event. कोई natural disaster हो गया जिसकी वजह से आपकी पूरी property damage हो गई, there is a loss of life in your family, or somebody became disabled due to an accident or anything else. So in that case, an insurance protection comes handy. Protection, a property insurance, an automobile insurance, uh, all of these things provide assets protection as well. It is important that the financial plan takes into consideration the risk that one cannot afford to take. अब क्या है, ये सब risk है कि what if somebody gets into an accident, gets disabled or dies, or what if somebody gets into an accident or their car is damaged, what if somebody gets into gets somebody's area is attacked by a natural calamity and their house is damaged, and so on. So अब क्या है, these are all huge risk that one cannot afford to take. तो इन risk से protection करने के लिए it is important कि एक किसी भी person के financial plan में ये insurance planning, ये protection planning ज़रूर हो. Okay? Protection plans provide comprehensive insurance cover to protect one's own and their family's future, to ensure that they lead their lives comfortably without any financial worries. अब क्या है, different protection plans में different insurance schemes होंगे. तो उसमें क्या है, life insurance scheme हो सकती है जिसमें मैंने आपको बताया, property insurance, assets का insure, automobile insurance, and all of these things. So what is the purpose of all of that? That it is providing a comprehensive cover to protect their own as well as their family's future, to ensure that they lead their lives comfortably without any financial worries, because all of them can cause huge financial losses, cause financial instability. To protect a person from all of those problems, to protect their family in case of all of those problems, insurance planning, protection planning helps a person a lot. Okay, then what is the need for in protection planning? जैसे अभी हमने बोला कि that it provides comfort, happiness and security to your family. एक person अपना life insurance करवाता है, right? अपने सारे assets का insurance करवाता है. So in the case of any damages or any loss of property or life, their family is financially secure. It is financially stable. They are in a comfortable situation in life, and on that note. The next is it provides long-term financial security. Insurance planning is not done only for the short term. It is from a long-term point of view. तो आप क्या कर रहे हो? You are providing financial security against losses to your assets, to your life, to a lot of things. Protection planning provides customizable life covers. देखो जो different insurance schemes होती हैं, they can be tailor made to a person's requirements. कितने साल की आपको scheme लेनी है, कितने you want protection against which all things, you want protection against which particular medical situations or accidents or simply loss of life or assets नहीं तो which assets. So today the insurers are providing customizable life covers to a person's need. If a person is medically unfit, he or she wants a life insurance, तो क्या करेंगे, insurance companies पूरा assessment करते हैं कि उनकी medical problems क्या हैं, उनके doctors उनका treatment क्या चल रहा है, and everything else. So life covers are customized to everything. The fourth is terminal illness cover. A person gets terminally ill. लॉन्ग टर्म इलनेसेस हो गई हैं, किसी को बहुत ज़्यादा बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाते हैं ड्यू टू अ नंबर ऑफ इलनेसेस. बहुत सारे इलनेसेस हो सकते हैं किसी को which is terminal, which is not, जिसके लिए सर्टेनिटी नहीं है क्योर की, या फिर अ पर्सन इज नॉट डूइंग वेल इन देयर हेल्थ. तो वो क्या करेंगे, वो प्रोटेक्शन प्लान्स लेंगे फॉर देयर फैमिली.
ऑप्शनल एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर। एक होता है डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंटल डेथ हो गई किसी की, एक्सीडेंट हो गया या नेचुरल कैलामिटी आ गई थी या एनीथिंग हैपेंड जिसकी वजह से अ पर्सन डाइड इन द फैमिली, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस कवर। या फिर डिसेबिलिटी कवर, इस एक्सीडेंट की वजह से पर्सन बिकेम डिसेबल्ड। तो क्या है ऑप्शनल, क्या लिखा है इसमें कि अ पर्सन में डिसाइड कि उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना है या नहीं। अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से डेथ भी हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है, नहीं तो मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं ज़्यादा। तो many insurance companies provide it as an optional cover that in addition to the other insurances you are doing, आपको इसका भी इंश्योरेंस कवर अगर लेना है या नहीं। देन देर इज टैक्स सेविंग ऑन द प्रीमियम पेड। ये हमने अपना टैक्स प्लानिंग में पढ़ा लास्ट यूनिट में कि डिफरेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स रिडक्शन मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे टैक्स रिडक्शन मिलती है। सो इन अ वे ये जो आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग है, ये जो प्रोटेक्शन प्लानिंग है, इसका जो प्रीमियम आप पे करते हैं उससे आपको टैक्स प्लान बेनिफिट भी मिलता है। तो यू आर सेविंग सम फॉर योर फ्यूचर एज वेल, यू आर प्रोवाइड मेकिंग प्रोविजन फॉर योर फ्यूचर एज वेल, एंड इन द प्रेजेंट यू आर ऑल्सो गेटिंग टैक्स बेनिफिट्स फॉर दैट इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल योर बेनिफिट्स फॉर दीज फ्रॉम दीज प्रोटेक्शन प्लानिंग। तो ब्रीफली अब मैं आपको आज डिस्कस करूंगी जो डिफरेंट प्रोटेक्शन प्लान्स हो सकते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज व्हाट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पॉलिसी ओनर एंड द इंश्योरर विच प्रोवाइड्स रिलीफ टू द सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन द केस ऑफ लॉस ऑफ द इंश्योर्ड मेंबर। इंश्योर्ड पर्सन वो होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, दे आर अ पॉलिसी ओनर और द इंश्योर्ड मेंबर। इंश्योरर होती है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, सो इन द केस ऑफ death of that person, there is certain amount of financial relief or compensation which is given by the insurance company to the surviving members of that person's family. The risk cover should be accordingly to the outstanding liabilities, goals and risk cover accordingly. कि अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस करने से पहले असेसमेंट करती है कि अच्छा इनके फाइन हो सकता है उस पर्सन की अपनी लाइबिलिटीज़ हो, उन्होंने कोई लोन्स हो लाइफ में उनके, या फिर एक पर्सन के गोल्स क्या हैं फॉर विच दे आर टेकिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी पीरियड्स होते हैं, कितने टर्म की लेना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर एक पर्सन की मेडिकल हेल्थ कैसी है, दे आर in a sound health, या फिर they have any kind of illness or a disability or whatever, and the risk cover they are willing to take. अब उसके आफ्टर ऑल ऑफ these assessments एक इंडिविजुअल की चॉइस भी है, एक पॉलिसी जो इंश्योर्ड मेंबर है उसकी भी चॉइस है कि उसको कितना एक्सटेंट तक का रिस्क कवर लेना है। So the life insurance cover which is ultimately bought depends on all of those things. Then the third point is that the insured person agrees to pay the cost in terms of insurance premium for the same. In return for this contract, for this financial relief, the insured person has to pay a premium, a life insurance premium, which is as a cost for all of these things. Okay. Next होता है disability insurance. Disability insurance is in the case a person gets hospitalized or unable to work temporarily, which could cause financial distress. एक person का कोई accident हो गया या फिर something happened, some due to some medical problem, they are now disabled temporarily, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर वर्कर थे या फिर ऑफिस में थे या बिजनेस था उनका, so they will be in financial trouble if they are not able to earn anymore for that period, or they are simply hospitalized due to that disability for their treatment or whatever. So इस केस में अगर एक पर्सन ने डिसेबिलिटी इंश्योरेंस किया हुआ है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी can provide relief to their family and for their treatment. Disability insurance provides income to the policy holders in the event they become disabled. फिर क्या है, जिसने टाइम के लिए they are not able to work या अगर उनकी अर्निंग कैपेसिटी ही कम हो गई है बिकॉज ऑफ दैट डिसेबिलिटी, दिस डिसेबिलिटी इस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस से उन्हें जो पैसा मिलेगा, they will be able to sustain in their life for that period and sustain support their family. It provides income protection plan to take care of the individual and their family. अब क्या होता है इसमें, क्या होता है एक पर्सन की इनकम, या तो इंश्योरेंस कंपनी फिर क्या करते हैं
इस केस में या तो उन्हें ऐसे इंश्योरेंस देती है कि इन केस दिस हैपन्स, उनको इनकम इतनी रेगुलरली इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एज एन इनकम कॉम्पनसेशन मिलता रहेगा, या फिर कंपनी उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स करती है तो क्या है, अब उनकी इनकम जनरेटिंग एवेन्यूज आ जाते हैं, या फिर उनका जो बिजनेस इनकम है अगर उन्होंने उनके थ्रू लॉसेस हुए थे, सो द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स एन इनकम प्रोटेक्शन प्लान फॉर दैट इन द, सो ये सब क्या है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के पार्ट्स हैं कि यहाँ पे इस केसेस में एक इंडिविजुअल को एज वेल एज फॉर देयर फैमिली एक इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, एक प्रोटेक्शन कवर मिल जाता है फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। The next is health insurance. Health insurance क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके जो health care expenses हैं, it is taking care of those. It is providing a cover for the health care expenses incurred by policy holders for the necessary medical care. जो उनके लिए उनकी फैमिली में कोई हेल्थ केयर इश्यूज, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वो अनटाइमली हैं या रेगुलर जो भी जिस भी रीजन से आ सकते हैं, it provides cover for that. This gives protection against unexpected high medical expenses in case of any illness which may require critical medical care or even hospitalization. एक पर्सन की अनएक्सपेक्टेडली कोई इलनेस आ गई है या कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई इलनेस डेवलप हो गई तो उनका मेडिकल बिल एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया, तो if a person is not able to support themselves, everybody cannot arrange cash immediately for that treatment, यहाँ पे health insurance comes very handy. तो in case of any illness, जो ये सारे मेडिकल एक्सपेंसेस का कॉम्पनसेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी कर देती है. ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस एज जब भी वो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, किस किस चीज़ों में केस में ये इंश्योरेंस कवर मिलेगी आपको, ये प्रोटेक्शन मिलेगी, और कितने you will have to present all your medical histories, your medical doctor certificate, your hospitalization cost, जितने bills हैं, जितने treatment का documents हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसको हुआ. The insurance companies are very particular, they are very vigilant when it comes to checking and finally approving your insurance claim. ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में all this is taken care of. The next is property insurance. Property insurance क्या है? Property insurance और home insurance provides protection in the event of property damage or theft. यहाँ पे mainly आपके usually आपका घर हो गया या आपके business premises हो गए, तो इस केस में protection उसके लिए मिलती है, specifically for the protection of your home or your premise or any property that you have in the event of their damage or theft. कोई natural calamity की वजह से there is damage to your property, या फिर there was some theft जिसकी वजह से your property was also damaged or you lost some valuables, इस केस में you are covered by the insurance plan. It protects the policyholders from a catastrophe like earthquake, floods, and cover the cost of repair and lawsuits in the case of someone's injury. अब जैसे if you are reading the newspapers these days, साउथ में चेन्नई तमिलनाडु साइड there are a lot of rains और floods आ रहे हैं, so people are suffering a lot of problems there. तो क्या है, उनके घर पे damages भी हो सकते हैं उसकी वजह से, तो जो बाद में उन्हें after the catastrophe passes they will have to incur, there has been loss of life, there has been loss of property, so after that passes they can go to, if they had property insurance, उन्होंने वो कवर लिया हुआ था, they can go to the insurance company and they can ask for repayment of their damages. कब कंपनी यहाँ पे असेस करती है, इंश्योरेंस कंपनी भी, कि अच्छा कितने अमाउंट के लॉसेस हैं, कितने अमाउंट का रिपेयर चाहिए होगा, कितना, या फिर एक्चुअली वो पहले रिपेयर करवा चुके हैं एंड देन वो क्लेम कर रहे हैं, वो उसके बिल्स चेक करेंगे, या फिर एनी लॉसूट केम अप इन केस ऑफ somebody's injury or some person got injured due to an earthquake, due to a flood, जिसकी वजह से वो घर पे थे या जहाँ पे भी थे वहाँ पे डैमेज हुआ and they also got injured in that, तो अब यहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनी असेस करेगी कि अच्छा what will happen. लॉ सूट कब हो जाता है, कैसे हो जाता है? लॉ सूट्स कैन बी फाइल्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट द कंपनी or can be filed by company against somebody or an authority or against any authority, कि आपने ये बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं थी, इसमें मेरी गलती नहीं है, या फिर पर्सन कैन गो टू द इंश्योरेंस कंपनी कि देखो बिल्डिंग अगर वो कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं थी, इट वाज नॉट माय फॉल्ट, आई हैड इसीलिए आई हैड टेकन
इंश्योरेंस कवर, सो यू नीड टू मेक गुड फॉर दोज लॉसेस फॉर मी। तो क्या है यहाँ पे पॉलिसी जो बनती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो पहले से फिर टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें स्पेसिफाइड होती हैं। दे with a very fine tooth comb a person should go through all of those terms and conditions before taking the property insurance, any kind of insurance for that matter, to make sure that in the case of any uncertain event, they are able to cover their damages. Individuals can also cover the contents of the house, which might be valuables and other important assets. क्या होता है, a person, एक तो हो गया आपने घर का इंश्योरेंस करवा लिया, अब आपके घर में जो सामान रखा है, एक पर्सन दैट इज लाइक अ स्टेप अहेड ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, आप उसका भी इंश्योरेंस करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन माइट थिंक मेरे घर में अगर वैल्यूएबल ज्वेलरी है, वैल्यूएबल एंटीक्स हैं, या फिर उनका कोई घर में एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, या मान लो एक पर्सन को लगता है घर के नॉर्मल चीज़ों का फर्नीचर एक्सपेंसिव है, या बहुत एक्सपेंसिव आपने कोई इक्विपमेंट्स रखी हुई है घर में, ऑल ऑफ दोस थिंग यू आर इंश्योरिंग। ये सब क्या है, या एक पर्सन के एसेट्स ही तो हैं। पर्सन कैन ऑल्सो पे फॉर एन इंश्योरेंस कवर फॉर द कंटेंट्स ऑफ द हाउस। तो क्या है कि इन चीज़ों की कोई थेफ्ट हुआ, घर में चोरी हुई, घर तो सही है लेकिन घर का सामान चोरी हो गया, अगर पर्सन के पास एक्सपेंसिव एंटीक्स थे, ज्वेलरी थी, वो चोरी हो गई, उनका कैश चोरी हो गया, उनका कोई मान लो बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स थे, कंप्यूटर हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है छोटी मोटी विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो एनीथिंग विच अ पर्सन कंसिडर्स वैल्यूएबल, वो उसके लिए अलग से इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। तो दैट इन द केस ऑफ theft of that content of property, or in case of damage to that, they can claim for insurance protection in the event of that theft or damage to that property। ठीक है, तो दिस इज लाइक एक घर का भी इंश्योरेंस हो रहा है और घर के सामान का भी इंश्योरेंस हो रहा है। ऑब्वियसली आपका जो इंश्योरेंस आप जितना क्लेम करोगे, दिस इज फॉर ऑल व्हाट, दिस इज फॉर ऑल द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, तो आपको इसका अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करना होता है। तो नाउ अ पर्सन विल, इसीलिए पर्सन डिसाइड, जब इसीलिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, प्रोटेक्शन प्लानिंग, कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में आप देखो कि आपको किस किस चीज़ का, व्हाट इज द रिस्क दैट यू कैन नॉट अफोर्ड, उन चीज़ों का आप इंश्योरेंस करते हो। वो आपकी लाइफ हो गई, वो आपके मेडिकल बेनिफिट्स हुए, वो आपका हेल्थ केयर हुआ, वो आपका डिसेबिलिटी हो सकता है, वो आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, वो आपका ऑटोमोबाइल हो सकता है। इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अ पर्सन मेक्स इंश्योरेंस फॉर थिंग्स दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, राइट। तो इनकी वजह से अगर उन्हें लगता है कि घर में ये चीज़ों की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आई शुड गेट दीज इंश्योर्ड एज वेल, a person will do that। Okay, so this is property insurance। Then the last one is auto insurance। Auto insurance क्या होगा, आपके automobiles का। It is a contract between an insurance company and a policy holder specifying the coverage of a particular vehicle। एक person का 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर कोई भी vehicle है, they are protecting that against any unforeseen damage। वो unforeseen damage किसी भी reason से हो सकता है। It can be a 4 wheeler or a 2 wheeler protected from unforeseen damage by you or someone driving the vehicle, or maybe the vehicle is not even being driven, किसी और ने उसको डैमेज कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, आपका गवर्नमेंट के रेगुलेशंस तो हैं कि आपको इंश्योरेंस होना चाहिए। वो क्या है, एक पर्सन के लिए वो ड्राइवर का इंश्योरेंस नहीं है ऑटो इंश्योरेंस, मतलब ड्राइवर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, बट एक्चुअली इट इज योर व्हीकल्स इंश्योरेंस, योर 2 व्हीलर और योर 4 व्हीलर। कोई भी डैमेज which happens to that 2 wheeler or 4 wheeler, why, how it can happen, you were driving it or somebody in your family was driving it, or it was not even being driven but somebody damaged it, खड़े खड़े पार्किंग में किसी ने डैमेज कर दिया, या रेड लाइट पे खड़े तो किसी और ने डैमेज कर दिया, एनीथिंग कैन हैपन। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द कॉन्ट्रैक्ट identifies the policy holder and the family members if they use the insured vehicle। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, राइट, सो इस केस में हो सकता है व्हीकल का इंश्योरेंस है, लेकिन पता चला इंश्योरेंस तो आपने लिया हुआ है, लेकिन यू वर नॉट ड्राइविंग इट, समबडी इन योर फैमिली वाज ड्राइविंग इट। तो अब इंश्योरेंस कंपनी को आप कहोगे कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे ये इंश्योरेंस क्लेम करना है, दे विल आस्क कि वेयर डिड द एक्सीडेंट हैपन, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, हु वाज ड्राइविंग, वर यू ड्राइविंग, इफ यू वर नॉट ड्राइविंग देन हु वाज ड्राइविंग। सो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपसे सारी डिटेल्स लेगी, वो पूरा आपसे नेगोशिएट, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा,
They don't want to lose money. What do you want? You want to make good for your loss. You want जितना पैसा मिल जाए उतना अच्छा है मेरे लॉस के लिए, जितना according to your insurance plan. And what the insurance company wants? Insurance company चाहती है कि उसे कम से कम पैसा देना पड़े. So they do a very comprehensive review of the whole situation. So that is why वो insurance contract में specify भी करेंगे कि अच्छा ये इस कार के लिए या इस बाइक के लिए या स्कूटी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है और आपके फैमिली मेंबर्स ये लोग भी इसे यूज करते हैं या नहीं. It can also help cover expenses as a result of an accident of your vehicle with another motorist or driver. Like I told you, कि it's it might be a case, yeah, it is actually a case when in case of an accident, आप खुद drive कर रहे हो, आपकी गलती भी ना हो, somebody else causes the accident, but you also suffer the losses. हो सकता है आपका personally you are safe, but your vehicle suffered the damage. आपका कार में कुछ टूट गया या आपकी बाइक में कुछ टूट गया, something happened, जिसकी वजह से आप डैमेजेस लेंगी, तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी बढ़ के बहुत सारे हो जाते हैं. तो अगेंस्ट ऑल ऑफ दोज रिपेयर्स आप कंपनी में आपकी गाड़ी या आपकी बाइक जाएगी, वहाँ पे उसकी सारी रिपेयरिंग होगी. तो यहाँ पे क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी एंड देन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में से चेक किया जाएगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ expenses are allowed to be covered under your automobile insurance. Then finally your insurance claim will be approved. There are also statutory requirements by the governments to insure the vehicles. Cost of insurance varies depending on the amount of risk coverage. Government के regulations हैं कि आपको mandatorily आपका vehicle का insurance होना चाहिए. इसीलिए कहते हैं ना कि ट्रैफिक पुलिस आपके कभी कभी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि अच्छा आपने क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, पोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस का कौन सा है, वैलिड है या नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो गया है. तो ये सारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि आपको मैंडेटरीली करवाना है इंश्योरेंस. तो इसीलिए दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाई अ पर्सन शुड टाइमली इंश्योर कि उनका ऑटोमोबाइल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम इंश्योर्ड है. अगर पॉलिसी रिन्यू करवानी है तो अगले साल दोबारा 1 साल के लिए जो भी प्रीमियम पे करके पॉलिसी रिन्यू हो जाती है. द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रिस्क कवरेज. वंस अगेन एक पर्सन ने व्हाट काइंड ऑफ रिस्क के अगेंस्ट उन्होंने इंश्योरेंस करवाया है इज वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है इसीलिए इनके इंश्योरेंस के प्लान्स अलग अलग होते हैं. इट इज़ नेवर द सेम. ये इसीलिए द कॉस्ट ऑफ जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी वेरी करता है कि अच्छा आपके इंश्योरेंस कवर में समबडी ब्रोक देयर हेडलाइट्स, नहीं हेडलाइट्स तो कवर्ड ही नहीं था, सिर्फ डैशबोर्ड, या फिर अंदर से डैशबोर्ड टूट गया या विंडशील्ड टूट गई है, या फिर बाइक का कुछ प्रॉब्लम हुआ, या फिर तो अब उसमें वो देखते हैं चीज़ें कि आपने कि आपका इंश्योरेंस कवर में इस पार्ट का रिपेयर करना का जो कॉस्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी या नहीं. तो वो सब चेक किया जाता है. उसके बाद नाउ इट इज अगेन द डिसीजन ऑफ द पर्सन, डिसीजन ऑफ द ओनर ऑफ द व्हीकल, that the what kind of protection, to what extent of protection should be given for this particular vehicle. कितना वो यूज करते हैं, कितनी कहाँ पे वो उसको यूज करते हैं, कितना वो प्रोन टू एक्सीडेंट है. कई बार लगता है कि जैसे जैसे व्हीकल पुराना होता जा रहा है या उसकी लाइफ कम हो गई है या उन्होंने ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो वो उसका ज़्यादा महंगा इंश्योरेंस प्लान लेंगे या नहीं वो सोचते हैं. सो दैट इज़ हाउ a person will plan their insurance, their automobile insurance cost. ठीक है, तो ये आपके टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास इन डिटेल. एनी डाउट्स फ्रॉम दिस सो फार? यूनिट 1 और यूनिट 2 का नाम बता दो. आप सिलेबस देखो ना, सिलेबस में क्या लिखा है. सिलेबस मैंने आपको कहा था आप यू शुड रेफर योर सिलेबस. यूनिट 1 is introduction to financial planning, unit 2 is something about financial instruments. I think मैं से सिलेबस में से आपको देख के बता देती हूँ, बट सिलेबस तो आपके पास भी अपना होना चाहिए. एंड इट इज़ ऑलवेज स्पेसिफाइड. आपकी पीपीटी की स्टार्टिंग में जब भी मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ यूनिट का नंबर और यूनिट का नाम हमेशा लिखती हूँ मैं. प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस टू मी.
प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स हैं वो अगेन वीडियो देख सकते हैं, क्या वो चल जाएंगे? हाँ, इट विल ओपन, आई थिंक इसीलिए आपको वो दिया गया है कि आप लॉग इन करके पुरानी क्लास के रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। इसीलिए आई कीप टेलिंग यू कि आप इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आपको दोबारा कुछ देखना होता है या पीपीटी दोबारा रेफर करनी है, आप यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर रिकॉर्डिंग। वो नहीं करना चाहते हो तो साथ साथ पढ़ो मेरे साथ। इन सेकंड यूनिट, द नेम ऑफ द सेकंड यूनिट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। हमने उसमें जो आपने ये रिस्क एंड रिटर्न पढ़ा था ना, इंडिविजुअल एसेट्स का रिस्क एंड रिटर्न, वहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं यूनिट 2 में। और पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न, बाकी हमने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स किए थे, एंड दिस बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, राइट। बाकी आपका ये यूनिट 3 पर्सनल टैक्स प्लानिंग एंड यूनिट 4 हमने स्टार्ट कर दिया विच इज़ इंश्योरेंस प्लानिंग। ओके, सो प्लीज़ आप क्लास में यू पे अटेंशन टू एवरीथिंग। जो भी मैं आपके डाउट्स हैं मैं लेती रहती हूँ। द सोर्सेज आई कैन नॉट टेल यू सिंगल वन। सोर्सेज मैं आपके डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग बुक्स, आई एम यूजिंग द इंटरनेट। आपको अगर आपका स्टडी मटेरियल मिल गया है आप उसको रेफर कर लो। स्टडी मटेरियल अभी नहीं मिला है, आपकी रीडिंग लिस्ट में 2-3 बुक्स हैं, उसमें से जो रेफर करना है करो। somebody told me that they are not liking the taxman's book, so don't use it। मैंने भी वो बुक देखी थी, उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से गिवन है लेकिन सारा सिलेबस कवर्ड नहीं है। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप देख लो, पीपीटी की यूज़ करो। आई विल नॉट से दैट ट्रीट इट एज होलसम फॉर एवरीथिंग। ओके, इसीलिए क्लास में सुनो भी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Otherwise, I try my best to make it as comprehensive as possible for your benefit. Okay, और कोई डाउट्स हैं? If there are no doubts, we'll continue in the next class with unit 4 insurance planning। आगे के टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। If there are no more doubts, I'll just take again। See, those of you who are asking about the practical and theory aspect, theory अब आपका सारा आगे theory aspect है, इसमें practical नहीं है। इस next unit is your retirement planning, उसमें and insurance planning में भी there are no numericals or anything। in as well study material there is only 2 units। what? तो आप चेक करोगे उसके पार्ट्स तो नहीं है? आई थिंक वो तब आया नहीं था, सो आई हैव नॉट सीन इट। अब वो आपका आ गया है तो आई विल चेक इट, मैं चेक कर लूँगी। लेकिन आपका जो सिलेबस है बीकॉम 5th सेमेस्टर, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, आई एम स्टिकिंग टू द सिलेबस। आपके जितने यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो यूनिट्स में आप कंटेंट चेक करो कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कई बार आगे पीछे हो जाता है। ओके, सो प्रैक्टिकली हमने आई डोंट नो, आपकी ज़्यादातर मोस्टली इस पर थ्योरी है, प्रैक्टिकल आएंगे भी या नहीं आई डोंट नो। तो लेकिन हमने कर लिए, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में थोड़े से प्रैक्टिकल्स, मैंने आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्रहेंसिव चीज़ों में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने आपको जितना मैंने आपको करवा सकती थी वो करवाया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने किए थे, एन्युटी से रिलेटेड जो हमने किए थे, एंड हमने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में थोड़े से रिस्क एंड रिटर्न के किए थे, मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड मेजरमेंट ऑफ रिटर्न फॉर इंडिविजुअल एसेट्स एंड पोर्टफोलियोज। उसका भी लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर द थ्योरी। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका प्रैक्टिकली आएगा, उसका थ्योरी नहीं आ सकता। सो प्लीज़ ऐसे मत करना, स्टडी एवरीथिंग। हाउ टू डू फर्दर स्टडीज इन पर्सनल फाइनेंस? स्टडी योर सिलेबस। भारत, आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आपकी पीपीटीज पढ़ो और बुक्स में से पढ़ो, इंटरनेट पे से पढ़ो। देर आर डिफरेंट सोर्सेज नाउ, अभी तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल, तो इट शुड नॉट बी एन इशू एट ऑल। और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, somebody said कि मैम ये टॉपिक तो हो गया है टैक्स प्लानिंग का, मुझे भी पता टॉपिक हो गया था, बट मेरे पास क्वेरीज आई थी 2-3 लोगों से कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है या इसको रिपीट करना है। सो इट वाज मेकिंग अप ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच वाज डन इन द पार्ट 1। सो आई सेड ओके, आई मिट इज वेल रिपीटेड फॉर यू। तो अगर किसी और को किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो यू टेल मी, आई विल डू दैट।
or if you have got the recordings up upload ho gayi hain, you can also go back to the recordings. That is also not an issue. Okay. Any more doubts? ठीक है. Today then we are done for today. We'll meet in the next class. We'll continue Unit 4, Insurance Planning, Protection Planning. Okay. Thank you.